Acha, everyone. All right. So questions 2 to 6. Again, I'm asking again. Question number 2 to 6 सबने कर लिया? वीडियो देख ली है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं? Anyone wants to ask anything? No. All right. So we start off with question number 7. Figure 1.1 represents the motion of Earth and the planet Venus around the Sun. The orbit shows the circles. On figure 1.1, draw an arrow to show the direction of force exerted by Sun on the Earth. ये डायरेक्शन कहाँ होगा? कौन सा फोर्स होता है ये? Centripetal force. So on the Earth, it's going to be towards the center of the circle or towards the center of the orbit. ठीक है? तो ये आपने जो है, you draw this arrow right here. Centripetal force. Yep. So the centripetal force exerted by the Sun on the Earth is going to be in what direction? It's going to be in the direction towards the center of the orbit. All right. Then we've got part B. Information about Earth and Venus is given in the table. All right. Use the information in the table to show that Venus has a greater speed than Earth. कैसे बताओगे? Speed is equals to? Good. Speed is equals to distance upon time. यहाँ पे distance कितना है? बेटा ऊपर पढ़ो तो सही, क्या लिखा हुआ है? आंखें बंद करके 0.1 and 7. हाँ? सर्कमफरेंस क्यों? रेडियस क्यों नहीं? हाँ? रेडियस क्यों? सर्कमफ्रेंस क्यों नहीं? इस्माइल, राफे, सुभान, इधर. So, what is the distance? आप सारे इधर आ जाओ. Everyone, खामोश. What is the distance traveled by Venus when orbiting the Earth? Is it going to be the radius or the circumference? Obvious सी बात है कि आपका जो ऑर्बिट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी द सर्कमफ्रेंस, राइट? हाँ कि नहीं? So the orbit length is going to be what? The orbit length is going to be the circumference. So now what's the orbit length of Venus? The orbit length of Venus is 679. The orbit length of the Earth is? So in this case अगर हमें स्पीड निकालनी है तो कितने मिलियन किलोमीटर्स पर ईयर है? ज़रूरी नहीं है कि मीटर्स पर सेकंड में आप निकाल के दिखाओ, वरना कन्वर्जन बहुत लंबी हो जाएगी. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेट्स डू दैट फॉर अर्थ. अर्थ के लिए इट्स गोइंग टू बी 942 मिलियन किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? दैट्स 1. सो वो तो सेम रहेगा. वीनस के लिए इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? It's going to be 679 divided by 0.7. Huh? 970. So this right here is equals to 970 million kilometers per year. मतलब Earth जो है, it travels a distance of 942 kilometers in 1 year. On the other hand, Venus travels 970 kilometers or 970 million kilometers in 1 year. तो ज़्यादा किसने ट्रैवल किया? वीनस ने. तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? वीनस की. Does that make sense to everyone? Now for someone who will convert the speed into meters per second, they'll be wasting time. Question ने ये नहीं बोला कि वीनस की स्पीड कितनी. The question didn't ask you अर्थ की स्पीड कितनी. The question just asking you to do what? To do a comparison. कौन ज़्यादा तेज है? Now you can compare using any units you want. यहाँ पे अगर मिलियन ऑफ किलोमीटर्स को पहले मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6 करेंगे ताकि उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें,
फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे ताकि उसको मीटर्स में कन्वर्ट करें। नीचे ईयर्स को पहले मल्टीप्लाइड बाय 365 करेंगे ताकि डेज में, फिर मल्टीप्लाई बाय 24 ताकि आवर्स में, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 ताकि मिनट्स में, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 ताकि सेकेंड्स में। गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग। कंपैरिजन है, क्वेश्चन स्पीड निकालने का नहीं बोल रहा। एंड इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टू फिगर आउट द स्पीड, द यूनिट्स डोंट मैटर, द क्वेश्चन जस्ट आस्किंग यू टू कंपेयर. So I hope that makes it clear. Venus speed is greater. ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया कि अर्थ की स्पीड 942 है, वीनस की स्पीड 970 है. Hence Venus is going to have a greater speed. हाँ, तो बस हमने प्रूफ कर दिया ना, ये ऊपर आपने ये दो काम कर दिया, काफी है. Doesn't really matter. If you want to, you can, but it doesn't matter. As Earth and Venus move in the orbits, the distance between them changes. Calculate the largest possible distance between them. अब ये आपके पास, so you have the Venus and the Earth orbit. When do you think are they going to be the maximum distance away from each other? Now to do that, आप एक सिंपल सा काम करो, वीनस या अर्थ में से कोई भी एक जो है वो स्टेशनरी कर दो. अज्यूम करो कि यार अगर ये अपनी जगह पे रहता है और दूसरा मूव होता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. लेट्स अज्यूम कि वीनस को हम मूव नहीं कराते, वीनस को हम कहते हैं कि वीनस अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है, ठीक है. एंड देन वी मूव द अर्थ अराउंड इन द ऑर्बिट. सो द अर्थ इज गोइंग टू बी इन सेवरल पोजीशंस अराउंड द ऑर्बिट. सही है. इसको क्या होगा? The earth is going to be in these lots of locations around in its orbit. आपके हिसाब से which location is going to have the smallest distance? ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा? नहीं. क्या ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा? नहीं. तो ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा? ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा. एक्चुअली यू नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस. और इज इट गोइंग टू बी दिस वन राइट हियर? प्रोबेबली द वन दैट आई एम नाउ शेडिंग रेड. और मे बी अगर आप कहो तो ये वाला. ईदर वन इज फाइन. यू जस्ट नीड टू ड्रॉ एन अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द अर्थ जहां पे उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एन अप्रोक्सीमेट लोकेशन. एंड उसमें भी क्वेश्चन आपको अर्थ बनाने का नहीं कह रहा. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई अज्यूम? अर्थ और वीनस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड वीनस शुड बी द रेडियस ऑफ वीनस. वीनस के ऑर्बिट का रेडियस प्लस अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस. ये दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगे. जब ये दोनों रेडियस ऐड हो गए, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप नाउ. सही है. हमने ये डिटरमिन कर लिया कि भाई ये जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है. मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ऑफ कोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट वेयर इट्स द सन. ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ द ऑर्बिट हो गया. सेंटर ऑफ द ऑर्बिट से वीनस की डिस्टेंस कितना होगा? इट्स गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ वीनस. सही है. सो ये आर वी लिख देते हैं. यहां सेंटर ऑफ द ऑर्बिट से लेके अर्थ का डिस्टेंस कितना होगा? जो अर्थ का रेडियस होगा. इसको हम आर ई लिख देते हैं. द लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज एसेंशियली द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड वीनस. ऑल राइट, ये कहानी क्लियर है? राफे, ये बात समझ में आई सबको? ऑल राइट. तो क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 258. एक मार्क का सवाल है. इफ यू जस्ट राइट द आंसर दैट्स इनफ. और अगर आपने ऐड करके शो, इफ यू वांट टू ऐड एंड शो दैट्स फाइन एज वेल, बट यू डोंट नीड टू. इट्स जस्ट वन मार्क. द मार्क इज फॉर द आंसर एंड दैट्स इट. Does this question make sense to everyone? ये बात क्लियर है सबको?
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8. Figure 4.1 shows a hydroelectric power station. Water from the lake is used to produce electricity in the turbine house. State where the water in figure 4.1 has the least potential energy. Beta, Subhan, Rafe, Ismail. So where is, अच्छा एक सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? हाइट पे डिपेंड करती है. हाइट ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. ऐसा ही होता है ढक्कनों? ऐसा नहीं होता. हाइट ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. हाँ हाँ सर, ऐसा ही होता है. हाँ. Now, so where is potential? Where is the water at the least height when it's going to the river? या तो फिर you say कि it's going to the river, या तो फिर you would say in the turbine house, whatever. सही है. Turbine house and going to the river is at the same position, it's at the same height. So either one is fine. So at this point you can say when water returns to river. अच्छा, again, just to make sure that you are as not ambiguous as possible, जितना clear हो उतना बेहतर है. आप यहां पे लेबल कर दें least potential energy as an answer to A. लिख तो दिया अपनी जगह पे, बट हो सकता है कि इफ मे बी यू डिडंट वर्ड इट करेक्टली एंड एग्जामिनर इज कंफ्यूज्ड कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. आप लोगों की माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऐसा कभी होगा तो नहीं, बट स्टिल, राइट. If let's say for example you are not able to communicate it to the examiner well, huh? Yes. So let's say for example if you are not able to communicate it to the examiner well, तो in that case at least examiner ने देखा कि आपने लेबल कहाँ पे किया है A, और वहां से देख के आपको आंसर दे देगा. सही है. तो दोनों चीजें जो है वो आप कर सकते हैं. क्या हुआ? हाँ. I suggest don't go with the turbine house but with the river. मेरा सजेस्ट होगे प्रॉबली दोनों आंसर सही होंगे, बट रिवर देना जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टर्बाइन हाउस के अंदर अगेन इट्स बेटर टू शो के आउटलेट पे आपकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी. नाउ बी पार्ट 1, एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट्स एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज एसेंशियली द आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट into 100. अब कभी कभार ये कंफ्यूजिंग बन जाता है कि भाई व्हाट्स इनपुट एंड व्हाट्स आउटपुट. सो द वे आई रिमेंबर दिस इज, फिजिक्स में एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% इज नॉट पॉसिबल. फिजिक्स में efficiency greater than 100% is not possible. So you always keep the smaller value in the numerator and the larger value in the denominator. फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है. Does that make sense? Efficiency is always less than 100% period. Efficiency cannot be more than 100% in physics at least. सही है. अब 100% कम आने के लिए जरूरी क्या है? that there is a smaller value in the numerator and the larger value in the denominator. So आपको दो values दी हुई हैं. Which one's going to be in the numerator? Which one's going to be in the denominator? छोटी वाली numerator में, बड़ी वाली denominator में. So 4.5 times 10 raised power 9 divided by 5.0, 10 raised power 9. Now again, when you're reading a question, one very, yeah. Subhan.
अच्छा, नाउ एवरीवन ओवर हियर, यहाँ पे बेटा दरवाजा बंद कर दो. अच्छा, नाउ तो आई वाज सेइंग दिस के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो है वो आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. And one of the things that you are going to notice over here is okay, the answer is 5.0 into 10 raised power 9. So what's the difference between 5.0 into 10 raised power 9 and just simply 5 into 10 raised power 9? What difference of significant figures? अब वो एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली यहाँ पे दो एस एफ क्यों यूज किए हैं? क्योंकि आंसर भी दो एस एफ पे देना है. एंड क्वेश्चन ने जो है वो दो एस एफ क्यों यूज किए हैं? क्योंकि आपका आंसर भी कितने एस एफ पे होना चाहिए? दो एस एफ पे होना चाहिए. सो व्हेन द क्वेश्चन सेज दैट दिस राइट हियर इज द एफिशिएंसी, 10 raised power 9 9 कैंसिल हो जाएगा एंड यू गोना गेट 90%. And you're going to get 90% as your answer. All right. Now over here, calculate in watts the electrical power output from the turbine house. Question says in 30 minutes, 4.5 into 10 raised power 9 joules of electrical energy is produced. तो टर्बाइन का आउटपुट जो है वो कितना होगा? टर्बाइन का आउटपुट जो है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. पावर को जो है वो आप एनर्जी अपॉन टाइम भी ले सकते हो, पावर को वर्क डन अपॉन टाइम भी ले सकते हो. इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी एनर्जी अपॉन टाइम बिकॉज व्हाई? क्योंकि योर पावर स्टेशन इज क्रिएटिंग एनर्जी, not technically creating converting energy from potential kinetic and then towards electrical energy. तो ये जो conversion है, ये जो power output है, इसमें कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? 4.5 into 10 raised power 9. नाउ जो आपका पावर जनरेटर है उसको मिल 5 into 10 raised power 9 रही है, लेकिन इफेक्टिव आउटपुट कितना है? 4.5. तो हम आउटपुट को ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पावर इनपुट की बात नहीं कर रहा. द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर. सही है, डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स है. सो वी आर नॉट गोइंग टू से या इट्स गोइंग टू बी 30 times 60. All right. So this right here is going to be 4.45 million divided by 1800. So that's going to be 2.5 into 10 raised power 6. 2.5 10 raised power 6 आ रहा है. So 2.5 तुम लोगों के कैलकुलेटर से तो तेज मैं हूं यार, खत्म करो. 2.5 into 10 raised power 6 watts. हाँ, डू यू रियली थिंक कि मैं 20 साल के पास पेपर्स फिजिक्स के, 20 साल के पास पेपर्स केमिस्ट्री के, 20 साल के पास पेपर्स मैथ्स के बैठ के याद करूंगा कि यार एक आंसर क्या होगा? अच्छा, दैट्स नॉट द ओनली थिंग आई टीच ए लेवल्स एज वेल. तो ए लेवल्स के 20 साल अलग, और फिर आई टीच आई बी एस ए टी एंड जी मैट जी आर ई की मैथ एज वेल. तो उनके क्वेश्चंस अलग. डू यू रियली थिंक आई बी एबल टू रिमेंबर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस? Done? All right. Now, everyone, part C. Some power stations burn coal to produce the same electrical output. State one advantage of hydroelectric power station. Never answer eco-friendly. You need to tell exactly how it's eco-friendly. Eco-friendly कैसे है? Renewable energy. Now, some power stations burn charcoal to produce some same electrical power output. State one advantage. So the first advantage is कि renewable है. Number two, no pollution. Yeah, comparatively less pollution.
तो अब इन दोनों में से आप कोई भी एक दे सकते हैं, सही है। एनी वन ऑफ दीज टू आर कंप्लीटली फाइन। ये ठीक है, क्लियर है। अच्छा, स्टेट वन हार्मफुल इफेक्ट दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हैव ऑन एनवायरनमेंट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का एक साइड इफेक्ट क्या होगा? हाँ, किसको? नहीं, इसका मैंग्रोव से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मैंग्रोव, तुम जो है मैंग्रोव्स कहां पर होते हैं? आई डोंट नो, मैंग्रोव्स का मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये है, तब तुम लोगों ने पीएचडी के अंदर अगर पढ़ा है तो पता नहीं, बट बेटा एवरीवन, मैंग्रोव्स का तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये है कि आप डिफॉरेस्टेशन जरूर कह सकते हैं। वाई डिफॉरेस्टेशन? क्योंकि डैम के लिए जगह खाली करनी पड़ती है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो वन हार्मफुल इफेक्ट वुड बी डिफॉरेस्टेशन टू क्लियर लैंड। सही है, डिफॉरेस्टेशन टू क्लियर लैंड। नंबर टू, एक और आपका जो नुकसान हो सकता है वो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका डैम्स अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो रिवर का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है। रिवर का फ्लो काफ़ी कम होने की वजह से कभी रिवर्स जो है वो जगह चेंज कर लेते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बट अगेन मेरे ख्याल में डिफॉरेस्टेशन इज काफ़ी, it's quite appropriate to answer it that and answer that over here। ठीक है ना? क्या टाइम क्या हो रहा है? ठीक है। Question number 9. Question number 9 says a train travels from one station to the next. It starts from rest at t is equals to 0 and accelerates uniformly from 20 seconds at t is equals to 20 as it reaches its top speed of 25 meters per second. It then travels at a speed for a further 30 seconds before decelerating uniformly to rest. The total time for the journey is 60 seconds. Sketch a speed time graph। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है? It starts from rest at t is equals to 0 and accelerates uniformly for first 20 seconds. It reaches a top speed of 25. So very simple. आपने x and y axis लिए and you're going to say कि अच्छा it's going to start at where? It's going to start from rest, मतलब it's going to start at 0 meters per second। ये y है, velocity in meters per second, सही है, and ये time है in seconds। Now the question says कि it accelerates for 20 seconds। तो आप कहीं भी एक 20 seconds को mark कर दें, and it accelerates to what? 25 meters per second। So ये 25 meters per second तक इसने एक्सेलरेट किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यू हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन। देन द क्वेश्चन सेज कि इट कंटिन्यूज और इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर फर्दर 30 seconds। 20 seconds के बाद 30 more seconds is going to be how long? सही है, तो टोटल 50 seconds तक। And what's going to be the shape of the graph? It's going to be a horizontal line, a straight horizontal line। This right here is the diagonal, and इसके बाद आपके पास क्या होगा? Straight horizontal line। And then the question says it then travels for a further 30 seconds before decelerating uniformly to rest। The total time for the journey is 60 seconds। तो 60 seconds पे वो कहां पर है? वो वापस रेस्ट पर आ गई। बेटा क्या हो गया है? So then eventually it decelerates and comes to rest। ये velocity time graph clear है बेटा? जल्दी बनाइए। बेटा मैंने स्केल के बगैर बनाया तो आप भी ऐसे ही बना लो, जल्दी करो बेटा। Write down the equation in words
That relates acceleration, time and change in velocity. तो acceleration, time and change in velocity वाला formula क्या है बेटा? It's A is equals to V minus U upon T. Yes. A is equals to V minus U in the numerator and T in the denominator. Explain what is meant by uniform acceleration. बहुत सारे आंसर्स दे सकते हो. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही तो पूछ रहा है. नहीं, बट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेट? सो द स्पीड इज इंक्रीजिंग. सही है. तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो व्हाट डज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस? दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म और अ कांस्टेंट रेट. रेट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट्स एक्सेलरेशन? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. व्हाट्स एक्सेलरेशन? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. नाउ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज व्हाट? कांस्टेंट. सही है. तो यहां पे आप लिखेंगे कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. अब यहां पे कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है उसको जाहिर सी बात है आप वर्ड्स आगे पीछे करके ये भी लिख सकते हो. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस दैट द रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग विल बी कांस्टेंट. कोशिश करो कि आगे पीछे लफ्ज ना करो. यू डोंट नो, सिंस योर इंग्लिश इज सो गुड, कभी कभार गलतियां आप लोग कर लेते हैं. सही है. तो बेसिक डेफिनेशंस जो है वो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो क्या करें, याद रख लें. Does that make sense to everyone? Yes? Clear है? बेटा क्या हुआ? Now, use your graph to calculate the deceleration as the train comes to a rest. Everyone over here. Beta, Visma. Now, use your graph to calculate the deceleration. Use your graph. ग्राफ को कैसे यूज करेंगे? ग्राफ को कैसे यूज करेंगे? ग्राफ से क्या फाइंड आउट करोगे एंड दैट्स गोइंग टू बी डिसेलेरेशन. हाँ, एरिया नहीं, एरिया नहीं. ट्रायंगल से क्या निकालते हो? नहीं 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 नहीं. Again, you need to remember acceleration or deceleration is the gradient of velocity time graph. Acceleration or deceleration is what? Is the gradient of velocity time graph. तो अगर आपको deceleration चाहिए तो what do you want to figure out? आपको क्या find out करना है? आपको gradient. Gradient का formula क्या है? So gradient के लिए all you need to do is y2 minus y1. Let's take this as point number 2 and let's take this as point number 1. So y2 minus y1 upon x2 minus x1 is going to be equals to what? That's going to be equals to 25 upon 10. That's going to be minus 2.5 meters per second squared. Now ये जो minus 2.5 है वो आप लिखोगे या सिर्फ 2.5 लिखोगे? Just going to write 2.5 centimeters per second squared. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, the question already says कि it's deceleration, मतलब obviously acceleration negative होगी. लिख लो बेटा जल्दी. Then you've got part B. Several forces act on the train when it's moving. Name the horizontal and the vertical forces that act on the train and give direction of each force. What type of resistance? ठीक है. एयर रेजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए?
अरे कौन सा एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है बेटा? ट्रेन सीधा चल रही है, एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? बैकवर्ड्स होगा। क्या हो गया? हाँ हाँ, इट्स ऑपोजिट टू द मोशन. सो name the horizontal and the vertical forces and give the direction of each force. सबसे पहले हम लोग वर्टिकल लिख लेते हैं. वर्टिकल वाले बताओ क्या होंगे? ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, वेट इज द फोर्स. ऑल राइट, ग्रेविटी इज अ फील्ड. अगर क्वेश्चन फोर्स बोल रहा है, पता नहीं तुम लोगों ने वीडियो देखी नहीं देखी, बट वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप फोर्स में ग्रेविटी लिख के आ जाओगे गलत हो जाएगा. सो अगेन, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, इट्स वेट. सो आपका वेट है. व्हाट डायरेक्शन इज वेट? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स? वेट जो है वो डाउनवर्ड्स हो गया. वेट डाउनवर्ड्स है. अच्छा, अपवर्ड फोर्स कोई होगा? अपवर्ड नहीं है फोर्स. कौन सी? डू वी हैव एन अपवर्ड फोर्स? अगर किसी भी चीज का वेट है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव दिस बॉक्स राइट हियर, आपके पास एक ये बॉक्स है. व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन व्हेन आई लीव इट? नीचे गिर जाएगा. क्यों? वेट है. ये प्रोजेक्टर, इसके ऊपर वेट है. ये प्रोजेक्टर जो है इसका कोई वेट है? नहीं है कि नहीं? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, आजा. प्रोजेक्टर का कोई वेट है कि नहीं है? इस्माइल का कोई वेट है कि नहीं है? सही है, ठीक है. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस प्रोजेक्टर हैज सम वेट, व्हाई इज इट नॉट गोइंग डाउन? एंड अगर ये प्रोजेक्टर नीचे नहीं जा रहा, लेकिन अगर इसको इफ आई लीव इट हियर इट विल मूव डाउन, व्हाई इज इट दैट? तो सरफेस के ऊपर पड़ा होने से क्या होता है? सो यस एंड नो. सो आप लोग जो है ये यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट करो, वीडियोस देखना शुरू करो बेटा. ये सारी चीजें वीडियोस के अंदर आई हैव स्पेसिफाइड वेरी एक्सप्लिसिटली. ऑल राइट. सो अगेन, whenever something rests on a surface, एक तो उसके ऊपर वेट अप्लाई हो रहा है, but there is a reaction force to the weight as well, known as the normal contact force. All right, so the normal contact force is a reaction force for anything that's resting on a surface. ये दोनों vertical forces उसके ऊपर हमेशा होंगे for something that's resting. So you've got your weight, which is going to be a downward force, and you've got your normal contact force, which is going to be in which direction? Upwards. ये दोनों forces याद होने चाहिए. कौन से दो vertical forces होंगे? Horizontal में क्या होना चाहिए? एक तो तुम लोग कभी चुप नहीं होगे. Horizontal forces में क्या है? एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन क्या होगा? इन दिस केस वी कैन राइट बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स हम क्यों लिख रहे हैं? हमें तो नहीं पता ना कि ट्रेन लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है. हॉरिजॉन्टली कहां जा रही है हमें नहीं पता. सही है. सो द डायरेक्शन इन विच द इंजन फोर्सेस वो कौन सा होगा? एक आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, दैट्स गोइंग टू बी बैकवर्ड्स, एंड दूसरा आपके पास क्या है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा? बेटा सोच के बोलो. फ्रिक्शन क्या करता है? तो if it opposes motion, तो it's going to be in a opposite direction of motion. And what's opposite in the direction of motion? That's backwards.
फॉरवर्ड जो है क्या चीज चला रही है ट्रेन को, तो engine force या driving force is going to be forwards. So it's going to be the driving force that's going to be forwards. Does that make sense to everyone? ठीक है. Explain whether horizontal forces are balanced or unbalanced. अब हमें क्या बताना है बेटा, everyone over here, हमें क्या बताना है? State whether horizontal forces are balanced or unbalanced. सही है. हमें यह बताना है कि ये जो तीन आपके पास ट्रेन्स दी हुए हैं, इन ट्रेन्स के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे या नहीं होंगे. सो व्हेन द ट्रेन एक्सेलरेट्स, बैलेंस्ड होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होंगे. एक्सेलरेट कर रहा है मतलब फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है, बैकवर्ड फोर्स क्या है? कम है. When the train travels at constant speed, that's going to be balanced. When the train decelerates, वापस unbalanced होगा. Now the question says you may draw diagrams. Diagrams बनाना important नहीं है. 3 मार्क का सवाल है, खाली बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और बैलेंस लिखना है. जी बेटा. वापस बोलो. Okay. Well, let's say for example, unbalanced का मतलब क्या है? अगर एक जगह ज्यादा है, let's say for example ये 40 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है, बैलेंस्ड होगा अनबैलेंस्ड होगा? तो क्या होना चाहिए? इट्स नॉट कि वो ओनली उस तरफ जाएगा. फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. सही है. तो अगर आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स जो है वो फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो इन दैट केस व्हाट्स गोइंग टू हैपन? योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सेलरेट इन दैट डायरेक्शन. अगर फोर्स है, अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन भी आएगी. When the question says कि it's constant speed means there is no acceleration. If there is no acceleration means जो सारे forces हैं वो balanced होंगे. आपका net resultant force जो है वो क्या होगा? It should be 0. अच्छा everyone, a second train has a non-uniform acceleration. Sketch a speed time graph showing non-uniform acceleration. Do not use paper. Do not use graph paper. मतलब आपको स्केच करना है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? इट्स गोइंग टू बी अ कर्व. एक्सेलरेट्स फॉर 20 सेकेंड्स, राइट? कर्व किस तरह का होना चाहिए? एक आपका कर्व बन सकता है ये, और एक आपका कर्व बन सकता है ये. विच कर्व इज इट गोइंग टू बी? यस. कौन सा होना चाहिए? 1 या इसको हम 2 कह देते हैं. Now, beta, everyone. Now, when the question says non-uniform, is the question mentioning कि आपकी acceleration बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? नहीं. So it could be either one. 1 भी सही है और 2 भी सही है. अगर आप increasing acceleration बनाते हैं तब भी खैर हो गई. अगर आप decreasing acceleration बनाते हैं तब भी it's fine.
ऑल राइट, डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये कहानी क्लियर है? ठीक है, ओके. Let's keep it till here for today, and inshallah we'll discuss the remaining questions tomorrow.